السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک عاشق چڑیل کی ہے۔ سن 2009 کا جون تھا جب کراچی کی گرمی اپنے عروج پر تھی۔ عامر ایک 28 سالہ خوش مزاج اور دلکش لڑکا تھا۔ اپنے کزن کی شادی میں شرکت کے لیے سکھر جا رہا تھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھیں اور مسحور کن مسکراہٹ ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنا لیتی تھی۔ وہ ایک آزاد روح تھا جو زندگی کے ہر لمحے سے لطف اٹھاتا تھا۔ جب اس کے کزن سہیل نے اسے شادی کی دعوت دی، عامر نے فوراً حامی بھر لی۔ چل یار، شادی میں خوب دھوم مچائیں گے، اس نے ہنستے ہوئے فون پر کہا تھا۔ عامر ٹرین سے سکھر پہنچا۔ سکھر کا ریلوے اسٹیشن گرمی کی شدت سے جیسے سلگ رہا تھا۔ پلیٹ فارم پر لوگوں کی بھیڑ، چائے والوں کی آوازیں اور ٹرین کے ہارن کا ایک عجیب سا شور پیدا کیا تھا۔ عامر نے اپنا بیگ اٹھایا اور سہیل کو ڈھونڈنا شروع کیا جو اسے لینے آیا تھا۔ سہیل ایک 22 سالہ شرارتی لڑکا اپنی موٹر بائیک پر ہاتھ ہلاتا نظر آیا۔ عامر بھائی ادھر، اس نے چیخ کر بلایا۔ دونوں نے گرم جوشی سے گلے ملے اور سہیل نے عامر کو شادی کے گھر لے جانے کے لیے بائیک پر بٹھایا۔ شادی کا گھر رنگ برنگے جھومروں، پھولوں کی مالاؤں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ مہندی کی تقریب پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ صحن میں بچھے قالینوں پر عورتیں رنگ برنگے جوڑوں میں مہندی کے گیت گا رہی تھیں۔ دولہا سہیل کا بہنوئی ایک سفید شیروانی میں مہندی لگاتے ہوئے شرما رہا تھا۔ عامر نے اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ محفل میں قدم رکھا اور فوراً سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اس نے دولہا سے مذاق کیا، یار تیری تو لگ گئی، اب بھاگنے کا وقت نہیں۔ سب ہنس پڑے اور محفل اور بھی رنگین ہو گئی۔ دوسری رات بارات کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ گھر کے باہر ایک بڑا پنڈال لگایا گیا تھا جہاں کھانے کے سٹالز پر قورمہ، بریانی اور کباب کی خوشبو فضا میں پھیل رہی تھی۔ عامر نے اپنے کزن کے ساتھ مل کر بارات کی گاڑیوں کو پھولوں سے سجایا۔ رات کے وقت جب بارات روانہ ہوئی، ڈھول کی تھاپ اور شہنائی کی آواز نے پورے محلے کو جگا دیا۔ عامر نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ناچنا شروع کیا اور اس کی ہنسی پورے پنڈال میں گونج رہی تھی۔ لیکن اسی دوران ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اسے دور سے گھور رہا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا لیکن ہجوم میں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اپنا وہم سوچا۔ شادی کی تیسری رات جب ولیمے کی تقریب ختم ہوئی، عامر گھر کے پچھلے صحن میں اکیلا بیٹھا تھا۔ صحن کے ایک کونے میں ایک پرانا پیپل کا درخت تھا جس کی شاخیں رات کے سناٹے میں عجیب سے سائے بناتی تھیں۔ ہوا میں ایک غیر معمولی ٹھنڈک تھی، حالانکہ گرمیوں کا موسم تھا۔ اچانک پیپل کے درخت سے ایک ہلکی سی سرسراہٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی پتے ہلا رہا ہو۔ عامر نے سگریٹ پیتے ہوئے گردن موڑ کر دیکھا۔ اندھیرے میں ایک عجیب سی جھلک نظر آئی، جیسے کوئی لمبے بالوں والی عورت سفید لباس میں کھڑی ہو۔ لیکن جب اس نے غور سے دیکھا، وہاں کچھ نہ تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی نے جنم لیا۔ اس رات جب وہ اپنے کمرے میں سویا، اسے ایک خوفناک خواب آیا۔ ایک لڑکی جس کے بال لمبے اور سیاہ تھے اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ خوبصورت تھا لیکن اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے خون سے بھری پڑی ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی جو دل کو دہلا دینے والی تھی۔ وہ عامر کو دیکھ کر بولی، تم میرے ہو عامر؟ اس کی آواز سرد اور بھاری تھی، جیسے کوئی ہوا کانوں میں گھس رہی ہو۔ عامر کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی بدبو تھی، جیسے کوئی پھول سڑ رہا ہو۔ اس نے روشنی جلا کر چاروں طرف دیکھا لیکن کمرہ خالی تھا، بس ایک خواب تھا۔ اس نے خود سے کہا لیکن اس کی آواز میں یقین نہیں تھا۔ شادی کے بعد عامر کراچی واپس جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہوا۔ رات کا وقت تھا اور ٹرین کی کھڑکی سے باہر اندھیرا گہرا تھا۔ عامر اپنی سیٹ پر بیٹھا فون پر گانے سن رہا تھا۔ ٹرین کی ہلکی سی جھٹکوں اور پٹریوں کی آواز نے اسے ایک عجیب سی نیند میں دھکیل دیا۔ لیکن اچانک اسے لگا کہ کوئی اس کے قریب بیٹھا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا اس کی سیٹ کے سامنے والی جگہ خالی تھی، لیکن اس کے کپڑوں سے ایک عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ ایک ایسی خوشبو جو نہ تو کبھی اس نے استعمال کی تھی اور نہ ہی وہ اسے پہچانتا تھا۔ یہ پھولوں اور کسی گہری پراسرار چیز کا ملاپ تھا۔ اس نے اپنی شرٹ کو سونگھا۔ خوشبو اتنی شدید تھی کہ اس کا سر ہلکا سا چکرا گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید شادی کے کھانوں کی خوشبو اس کے کپڑوں میں سما گئی ہو۔ لیکن جب وہ دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھا، اسے لگا کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا لیکن شیشے میں اس کی عکاسی کے پیچھے ایک عجیب سی جھلک نظر آئی، لمبے سیاہ بال اور سرخ آنکھیں۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا لیکن کمپارٹمنٹ خالی تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی۔ رات کے سناٹے میں پلیٹ فارم پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔
आमिर ने देखा कि प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक औरत खड़ी थी जिसके बाल उसके चेहरे को ढांप रहे थे। उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और उसके पाँव अजीब से लग रहे थे जैसे उल्टे हों। जब ट्रेन दोबारा चली वो औरत गायब हो गई। आमिर ने खुद को समझाया कि इसकी थकावट का नतीजा हो सकता है, लेकिन उसके कपड़ों से आने वाली खुशबू अब उसे खौफजदा कर रही थी। कराची वापस आने के बाद आमिर की ज़िंदगी अचानक बेहतर होने लगी। उसके कारोबारी मंसूबे जो महीनों से उलझे हुए थे अचानक कामयाब होने लगे। उसके क्लाइंट्स उसकी तारीफ़ करने लगे। उसके दोस्त हैरान थे कि आमिर की किस्मत कैसे रातों रात चमक उठी। उसकी मुस्कुराहट और भी दिलकश हो गई और उसके कपड़ों से वही अजीब सी खुशबू आती जो ट्रेन में उसने पहली बार महसूस की थी। ये खुशबू इतनी दिलफरेब थी कि हर कोई उससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सकता। एक दिन उसका दोस्त फैसल उससे मिला और हंसते हुए बोला कि यार आमिर, ये कौन सा परफ्यूम है? ऐसी खुशबू तो मैंने कभी नहीं सूंघी। बता कहाँ से लेता है? आमिर ने हंसी में बात टाल दी। बस यार कुछ नहीं, शायद नई धुलाई का साबुन है। लेकिन वो खुद भी हैरान था, उसने कोई परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। उसकी बहन नादिया जो उसके साथ रहती थी, उसने भी इस तब्दीली को नोट किया। आमिर, तुम्हारे साथ कुछ अजीब हो रहा है क्या? तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, लेकिन ये खुशबू ये कहाँ से आती है? आमिर ने कंधे झुकाते हुए कहा, बाजी तुम भी बस फिक्र करती हो। अच्छा वक्त आ रहा है, इसे एंजॉय करते हैं। लेकिन रात के वक्त जब वो अकेला होता अजीब वाक़यात होने लगे। कभी कमरे की दीवारों पर साए हरकत करते दिखाई देते, कभी आईने में इसकी अक्सी के पीछे एक झलक नज़र आती। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटा था उसने एक हल्की सी सरगोशी सुनी, तुम मेरे हो आमिर। उसने फ़ौरन रोशनी जला दी, लेकिन कोई ना था। उसने अपनी शर्ट उठाई और उसे सूंघा। खुशबू इतनी शदीद थी कि उसका सर चकरा गया। उसने शर्ट को गौर से देखा। उसके कॉलर पर एक हल्का सा धब्बा था, जैसे खून का निशान। उसने जल्दी से शर्ट धो दी, लेकिन खुशबू और भी शदीद हो गई। एक शाम जब वो अपने दोस्तों के साथ कॉफ़ी हाउस में बैठा था, एक अजीब वाक़या पेश आया। उसकी जैकेट ज़मीन पर गिर गई। जब उसने उठाया तो जैकेट के अंदर से कोई चीज़ महसूस हुई। उसने जैकेट झाड़ी तो उसमें से एक फूल गिरा, एक अजीब सा फूल जो उसने कभी नहीं देखा था। उसके पत्ते स्याह थे और उससे वही खुशबू आ रही थी जो उसके कपड़ों से आती थी। उसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा कि यार ये तो कोई गर्लफ्रेंड का तोहफा लगता है। लेकिन आमिर का दिल धक धक कर रहा था। उसे सखर का वो पीपल याद आ रहा था और वो ख्वाब जिसमें लड़की उसे अपना कह रही थी। उस रात जब आमिर अपने कमरे में अकेला था, वो अपने बिस्तर पर लेटा सोच रहा था, उसने अपनी अलमारी खोली और अपनी शर्ट निकाली। वही खून का धब्बा अब और गहरा हो गया था। उसने शर्ट को हाथ में पकड़ा तो उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई ना था। अचानक कमरे की रोशनियां टिमटिमाने लगीं। उसने आईने की तरफ देखा और उसकी सांस रुक गई। आईने में इसके अक्स के पीछे वही लड़की खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, हालांकि खिड़की बंद थी। उसकी सुर्ख आंखें आमिर को घूर रही थीं और उसके होंठों पर वही खौफनाक मुस्कुराहट थी। उसकी आवाज़ कमरे में गूंजी, तुम क्यों मुझसे दूर भागते हो? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आमिर के मुंह से चीख निकली कि अचानक उसने अपने कमरे की छत पर देखा। उसकी शर्ट जो उसने धोकर अलमारी में रखी थी छत से लटक रही थी। उसके नीचे ज़मीन पर उल्टे पाँव के निशान थे, जैसे कोई उसके कमरे में चल रहा हो। और उस खुशबू जो पहले दिलफरेब थी उसके गले में अटक गई। कमरे की रोशनियां अचानक बुझ गईं और अंधेरे में एक सरगोशी गूंजी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आमिर अब अपनी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक और अजीब लम्हात गुजार रहा था। उस रात के बाद जब उसके फ्लैट में दीवार पर खून से लिखा हुआ पैगाम नमूदार हुआ और उसे एक ठंडे गैर इंसानी हाथ का लम्स महसूस हुआ, उसकी ज़िंदगी एक डरावने ख्वाब में बदल गई। बाहर से देखने वालों के लिए वो अब भी कामयाबी की बुलंदियों पर था। उसके कारोबारी मुआहदे बढ़ रहे थे, उसके माली हालात मजबूत हो रहे थे। उसने एक महंगी गाड़ी खरीद ली थी। उसने अपने नए फ्लैट के अलावा और भी बहुत सी आसाइशें खरीद ली थी। उसका घर एक आलीशान ख्वाब की तरह लगता था, जिसकी दीवारों पर महंगे आर्ट के टुकड़े लटक रहे थे और रात के वक्त समंदर की लहरों की आवाज़ उसके कमरे में गूंजती थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक तारीक साया उसके हर लम्हे पर हावी हो रहा था। नादिया, उसकी बहन जो स्कूल में पढ़ाती थी, अब पूरी तरह परेशान थी। वो आमिर के बदलते रवैये से खौफजदा हो गई थी। आमिर, तुम ठीक नहीं हो, उसने एक सुबह कहा जब वो नाश्ते की मेज़ पर बैठे थे। आमिर का चेहरा जर्द पड़ रहा था और इसके हाथों में अजीब सी लर्जिश थी।
बाजी बस काम का दबाव है, उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज़ में जोश गायब था जो कभी उसकी पहचान था। नादिया ने देखा कि उसके कपड़ों से अब भी वही अजीब महक आ रही है, एक ऐसी खुशबू जो अब तल्ख और भारी हो चुकी थी, जैसे कोई पुरानी कब्र से उठती हो। ये खुशबू कहाँ से आती है? नादिया ने पूछा, लेकिन आमिर ने बात बदल दी, क्योंकि उसके पास इस बात का जवाब नहीं था। उसके दोस्तों का हसद अब खुलकर सामने आ रहा था। एक शाम जब वो अपने पुराने दोस्तों फैसल और इमरान के साथ एक मुकामी ढाबे पर बैठा था, फैसल ने तंजिया अंदाज में कहा, आमिर तूने तो ज़िंदगी को सोना बना दिया है, हम तो बस तेरी गाड़ी और फ्लैट देखकर जल रहे हैं। इमरान ने हंसते हुए इजाफा किया, और ये खुशबू यार, ये तो कोई जादू है, कोई राज है तो बताओ। आमिर ने हंसी में बात टाल दी, लेकिन उसका दिल दहल कर रह गया। वो जानता था कि उसकी कामयाबी के पीछे कोई गैर फितरी चीज़ थी। वो खुशबू जो पहले लोगों को अपनी तरफ खींचती थी, अब इसे खौफजदा कर रही थी। रात के वक्त जब वो अकेला होता, वो महक इसके फ्लैट के हर कोने से उठती, जैसे कोई इसके साथ हर लम्हा मौजूद हो। खौफनाक वाक़यात अब ज़्यादा शिद्दत से हो रहे थे। एक रात जब आमिर अपने फ्लैट से क्लाइंट के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था, उसे लगा कोई उसके कमरे की अलमारी अंदर से खटखटा रहा है। उसने फ़ोन बंद किया और कान लगाकर सुना। आवाज़ तेज़ होती गई, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी खुरच रहा हो। उसने हिम्मत करके अलमारी खोली, लेकिन अंदर कुछ ना था, सिर्फ उसके कपड़ों से वही तल्ख महक उठ रही थी। जब उसने अलमारी बंद की, उसे अपनी पीठ पर एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई, जैसे कोई उसे हल्का सा छू रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कमरा खाली था। लेकिन जब वो अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा, उसे अपने तकिए पर एक अजीब सी चीज़ नज़र आई, एक लंबा स्याह बाल जो उसके अपने बालों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने बाल को उठाया और उसे छूते ही उसके हाथ में एक अजीब सी जलन हुई। उसने बाल को जल्दी से कूड़ेदान में फेंक दिया, लेकिन इस रात वो सो ना सका। एक और दिन जब वो अपनी नई गाड़ी में शहर के मसरूफ़ इलाके से गुजर रहा था, उसे अपने गाड़ी के वेव मिरर में एक अजीब सी चीज़ नज़र आई। पीछे की सीट पर एक हल्का सा साया था, जैसे कोई वहाँ बैठा हो। उसने फ़ौरन गाड़ी रोकी और मुड़कर देखा, लेकिन सीट खाली थी। लेकिन जब वो दोबारा मिरर की तरफ देखने लगा, उसे एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। उसके गाड़ी के अंदर वही खुशबू फैल गई और इसका सर घूमने लगा। उसने जल्दी से खिड़की खोली, लेकिन हवा में भी वही महक थी। उस रात जब वो अपने फ्लैट पर वापस आया, उसे अपनी गाड़ी की चाबी पर एक अजीब सा निशान मिला, जैसे कोई पंजों से उसे खुरचा गया हो। नादिया पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि आमिर के साथ कुछ गलत हो रहा है। एक शाम जब वो घर आई, उसने देखा आमिर अपने कमरे में खाली दीवार को घूर रहा है। उसके चेहरे पर अजीब खालीपन था, जैसे वो कोई ऐसी चीज़ देख रहा हो जो नादिया को नज़र नहीं आ रही। आमिर, तुम क्या देख रहे हो? उसने पूछा, लेकिन आमिर ने कोई जवाब ना दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। नादिया ने इसके कंधे को हिलाया और आमिर चौंक कर बोला, बाजी कुछ नहीं, बस सोच रहा था। लेकिन नादिया ने देखा कि उसके हाथों पर अजीब से सुर्ख निशानात थे, जैसे कोई उसे जोर से पकड़ गया हो। इस रात जब नादिया अपने कमरे में थी, इसे आमिर के कमरे से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई शीशा टूट रहा हो। उसने जल्दी से आमिर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब अंदर झांका तो वो हैरान रह गई। आमिर का बिस्तर खाली था और कमरे की ज़मीन पर अजीब से गहरे निशान थे, जैसे कोई भारी चीज़ वहाँ से घसीटी गई हो। आमिर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी कामयाबी अब उसके लिए एक बोझ बनती जा रही थी। वो खुशबू जो पहले उसकी कामयाबी का राज लगती थी, अब हर जगह उसका पीछा कर रही थी। एक दिन जब वो अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा था, उसे अपने पाँव के करीब एक अजीब सी चीज़ नज़र आई, एक छोटा सा घंटी वाला तावीज़ जो उसने कभी नहीं देखा था। उसने उसे उठाया और अपने हाथ में लेते ही उसे लगा कि कोई उसके कान में हंस रहा है। उसने तावीज़ को जल्दी से बालकनी से नीचे फेंक दिया, लेकिन जब वो वापस मुड़ा, उसे अपने कमरे की दीवार पर एक अजीब सी तस्वीर नजर आई। ये एक स्याह साया था जो दीवार पर बनता और मिटता था, जैसे कोई इसे हवा में बना रहा हो। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, साया गायब था। लेकिन उसके कमरे की हवा अब इतनी ठंडी हो गई थी कि उसकी सांस धुआं बनकर निकल रही थी। उस रात जब आमिर अपने बिस्तर पर लेटने की कोशिश कर रहा था, उसे लगा कि उसका बिस्तर हल्का सा हिल रहा है। उसने रोशनी जला दी, लेकिन कुछ ना था। लेकिन जब वो दोबारा लेटा, उसे अपने तकिए के नीचे एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई धार ज़मीन से टकरा रही हो।
اس نے تکیہ ہٹایا، اس کی سانسیں رک گئیں۔ وہ وہی گھنٹی والا تعویذ تھا جو اس نے بالکنی سے پھینک دیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، تم میرے ہو، ہمیشہ کے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا، کمرے کی تمام روشنیاں بجھ گئیں اور وہ ایک ٹھنڈی غیر انسانی آواز اس کے کان میں گونجی، اب تم کہیں نہیں جا سکتے۔ اس کے گلے پر ایک سرد ہاتھ نے گرفت مضبوط کر دی اور اس کے فلیٹ کی دیواریں جیسے اس کی طرف بڑھنے لگیں۔